So students, after living and non-living, our next topic, that is the cell, basic unit of life. So cell beta, what is cell? So that is the smallest unit of living organism. So whether it is a plant, animal or any microorganism beta, that is made up of cell. That is also called basic building unit of life. Also called structural and functional unit of life. स्मॉलेस्ट यूनिट बेटा, सबसे छोटी इकाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बेसिक मूलभूत बिल्डिंग बनाने वाली यूनिट इकाई, लाइफ जीवन को सबसे छोटी इकाई यानी स्ट्रक्चरल जो कि बनावट बनाएगी, कोई फंक्शनल जो कि कोई फंक्शन करने में कैपेबल है, कोई काम करने में कैपेबल है, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा. सो वन सेल इज़ कैपेबल लाइक अमीबा. अमीबा के बारे में आप जानते हो. सो दैट इज़ द यूनिसेल्युलर इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म. सो वन सेल ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कैपेबल टू डू ऑल द फंक्शंस बेटा. इंडिविजुअल आइडेंटिटी इसकी है, हर एक फंक्शन कर सकता है बेटा, चाहे वो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है, रेस्पिरेशन है. सो वन सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन बेटा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दैट्स वाई द सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल, मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनाती है, बनावट बनाती है, एंड फंक्शनल मतलब जो कोई काम कर सकती है. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेल बेटा. व्हाट इज स्टडी ऑफ सेल? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. So what is cytology? That is study of cell in all aspects beta. That is study of form, structure and composition. That is cytology. And what is histology? That is study of tissue. So what is the basic beta? The smallest unit, that is the cell. Group of cell, that is called tissue. Group of tissue beta, tissues from the various organs like liver, kidney, heart which is present in the humans beta. Organs, all the organs constitutes a group together to form the organ system like digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, and all the systems forms the complete organism. So some smallest unit, cell, tissue, the group of cell, organs, group of tissue, organ system, these are the group of organs beta, and organ system makes the complete organism. After that you have to study some of the scientists and their discoveries. So scientist name beta, first Robert Hooke, second Robert Brown, then Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek, Purkinje, Hogsley, Schleiden and Shivan, Rudolf Virchow, Ernst Haeckel and Einstein. So now the discoveries are beta, Robert Hooke discovered the cell, that is dead cell. So what he has observed? He has observed the cork tissue of a plant, cork tissue of oak plant, that is Quercus, that is the oak plant. तो सबसे आउटर मोस्ट जो टिश्यूज़ होती हैं बेटा बार्क के नीचे, दैट इज़ द प्लांट. सो जो बाग के नीचे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द कॉर्क टिश्यूज़. सो ही हैज़ एक्सट्रैक्टेड द कॉर्क टिश्यू एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंडर इसने ऑब्जर्व किया, खुद ही बनाया इसने माइक्रोस्कोप बेटा. सो व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, like compartments are there, right? And he has observed only the outer part, that is the cell wall beta. So who discovered first dead cell? Yeah, who discovered cell wall? So the answer is Robert Hooke beta.
in 1665. सो एनडीए के अंदर बेटा ईयर्स नहीं पूछे जाते तो याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा. सो ही हैज़ ऑब्जर्व ओनली द सेल वॉल पोर्शन बेटा. ना उसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया, ना अंदर साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ बताया बेटा, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. सो व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व ओनली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, दैट इज सेल वॉल. So who discovered the dead cell? That is Robert Hooke, right? And he has published his work in a book name is Micrographia. So Micrographia beta, his book name. Next scientist Robert Brown, so discovered the nucleus. Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek discovered the first living cell. So who discovered the first living cell? That is Leeuwenhoek. And dead cell, that is Robert Hooke. Yeah, if normal cell who discovered the cell, that is Robert Hooke. And he has also discovered the sperms, RBC, some of the protozoans and bacteria for the first time. Next, Purkinje, so he gives the term protoplasm. व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म बेटा? दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के सेल में जितनी भी चीज़ें होती हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. सो अगर क्वेश्चन आता है बेटा एमसीक्यूज़ के अंदर, सो न्यूक्लियस में लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बेटा लिक्विड साइटोसोल बोलते हैं, जिसमें फ्लोट करती हैं सेल ऑर्गेनील्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, बहुत सारे होते हैं. सो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनील्स, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. नेक्स्ट इज हॉग्सले. सो ही हैज़ गिवन द टर्म दैट प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट श्लाइडन एंड शिवान, दे गिव्स द सेल थ्योरी. So what is cell theory? Simple, all the plant and animals are made up of cell. जितने भी plants और animals हैं सभी cell से मिलके बने हुए हैं. That is the cell theory बेटा. Schleiden and Shivan बेटा, there are two scientists. Schleiden जो था बेटा is the botanist and Shivan he as the zoologist. Next Virchow बेटा, he has expand the cell theory. इसने सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया. एक्सपैंड मतलब कि एक पॉइंट और जोड़ा. क्या पॉइंट? फर्स्ट सेम सेल थ्योरी का, ऑल प्लांट एनिमल मेड अप ऑफ सेल. सेकंड पॉइंट, ही हैज़ गिवन अ टर्म ओमनीस सेल्युआ ई सेल्युआ. तो व्हाट इज ओमनीस? ओमनीस मतलब ओमनीवोर्स सुना है, सर्वाहारी, सब जो खाते हैं. तो ओमनीस मतलब ऑल, सेल्युआ ई सेल्युआ मतलब सेल से सेल. सो इट मीन्स दैट all the cells which exist now, all cells are arised from pre-existing cells. जितनी भी सेल्स आज हैं वो किससे बनी हैं? जो पहले सेल थी उनसे. हम पेरेंट्स से बने हैं अपने, वो उनके पेरेंट्स से बेटा, वो उनके पेरेंट्स से. तो बिल्कुल सही बात है. तो ओमनीस सेल्युआ ई सेल्युआ, हु हैज़ गिवन दैट टर्म? रुडोल्फ विर्क्यो. सेल थ्योरी श्लाइडन एंड शिवान बेटा. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स. श्लाइडन एंड शिवान सेल थ्योरी, ओमनीस सेल्युआ ई सेल्युआ, रुडोल्फ विर्क्यो बेटा, तो याद करना है. नेक्स्ट इज हेकल बेटा. इसने बताया न्यूक्लियस स्टोर्स द हेरिडिटी मटेरियल. कि डीएनए के बारे में किसी और साइंटिस्ट ने बताया बेटा, डीएनए टर्म भी किसी और साइंटिस्ट ने दी, जस्ट इसने गेस किया. इसने बताया न्यूक्लियस जो स्टोर करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. हेरिडिटरी कैरेक्टर्स दैट मीन्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि जीन होता है बेटा, डीएनए होता है, राइट. जीन्स होते हैं स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए. स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स. हैंस्टीन बेटा, ही हैज़ गिवन अ टर्म प्रोटोप्लास्ट. सो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट बेटा? प्रोटोप्लास्ट दैट मीन्स सेल विदाउट सेल वॉल. सेल विदाउट सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. तो हु हैज़ गिवन द टर्म प्रोटोप्लास्ट? हैंस्टीन. प्रोटोप्लाज्म टर्म दैट इज गिवन बाय पुरकिंज. फर्स्ट लिविंग सेल ल्यूवेनहॉक. First cell या first dead cell, that is Robert Hooke. So these are the some scientist names you have to learn. There are few more scientists name if you want to learn. So who has discovered the light microscope? So light microscope. So scientist name is Galileo Galilei.
हु हैज़ डिस्कवर्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि लैब में आप देखते हो बेटा, देखा है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। दैट इज़ डिस्कवर्ड बाय जैकेरियस जेनसन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1 लाख टाइम होती है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा बड़ा जिसमें दिखाई देगा, मतलब और छोटी चीज़ों को और डिटेल स्टडी हम कर सकते हैं। दैट इज़ डिस्कवर्ड बाय नोल एंड रस्का, 2 साइंटिस्ट्स। नेक्स्ट थिंग, सेल साइजेस। सो फर्स्ट, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया या स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल। सेकेंड इज स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल। लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, smallest cell without cell wall, that is mycoplasma, also called PPLO, pleuropneumonia like organism. Smallest cell with cell wall, that is bacterial cell, and the smallest bacteria name is Pelagibacter ubq. साइज़ की बात करें तो माइकोप्लाज्मा बेटा अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज़ 0.2 to 5 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें सो दैट इज़ द नर्व सेल। longest cell is nerve cell. So in humans, nerve cell is the longest cell and that is the sciatic nerve, जो कि लोअर स्पाइनल कोड से अराइज होती है बेटा एंड अपने पैरों के अंगूठे तक होती है। दैट इज़ फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड टू द टो ऑफ योर फिट बेटा। सियाटिक नर्व है, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर लॉन्ग। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, 18 सेंटीमीटर। Some more sizes you can learn. Fiber cell of Manila hemp, that is 10 centimeter in length, 100 sorry. Next, Acetabularia, a marine alga बेटा, alga थैलोफाइटा के अंदर आता है, marine alga, so 10 centimeter height, its height is 10 centimeter. अमीबा पूछे, अमीबा प्रोटियस, अमीबा is the genus, Proteus species, its size is 60 micrometer. प्लांट्स की बात करें सो ओव्यूल ऑफ साइकस, that is 1 meter long. So next is सेल शेप बेटा। सो जनरली अपने दिमाग में जो चीज़ आती है सेल के बारे में हम सोचते हैं तो सिंपल एक सर्कल आता है दिमाग में, डॉट बनाते हैं बेटा। साइटोप्लाज्म हम बनाते हैं डॉट, दैट इज़ द न्यूक्लियस। सो सेल शेप्स की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल शेप्स। अपनी बॉडी के अंदर भी अलग अलग शेप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा। जैसे लीवर सेल की अगर मैं बात करूं सो लीवर सेल्स आर कॉल्ड हिपैटोसाइट सेल्स। हिपैटोसाइट सेल्स शेप जैसे पॉलीहेड्रल शेप होती है, पॉलीहेड्रल शेप लीवर सेल्स। अगर मैं बात करता हूं बेटा बोन सेल की सो बोन सेल आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट सेल्स। ऑस्टियोसाइट सेल हड्डी भी सेल से मिलके बनी हुई है, ऑस्टियोसाइट सेल बेटा। उसकी शेप होती है स्टीलेट शेप, स्टीलेट शेप बेटा। सो जिसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, कैनालिक्यूलाई। ऑस्टियोसाइट सेल्स बेटा। अगर मैं बात करता हूँ फैट सेल की तो फैट सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइट सेल्स।
देयर शेप इज एलिप्टिकल शेप विच हैज़ अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल, जिसके अंदर फैट स्टोर होता है बेटा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्व सेल, so elongated shape. So there are chromatophore cells. These are the pigmented cell बेटा, जो स्किन में होती है, पिगमेंट्स जिसके अंदर होते हैं. ये ब्रांच्ड होती है, यानी कि लीफ लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इसके अंदर, लीफ लाइक एक्सटेंशंस होती हैं. These are the chromatophore, like RBCs, red blood cells. These are biconcave and spherical, or discoidal, also called discoidal shape, or biconcave spherical. So that means circular होगी, disc like दिखने में, but that is thin in the center, thick at the corner. Biconcave spherical मतलब कि बीच से क्या होगी बेटा, थिन होगी, किनारों से मोटी होगी, बीच से पिचकी हुई होगी. Like germ cells, also called sex cells. These are cuboidal shape. So in male, in testes, germinal epithelium. These are the germ cells, cuboidal जो होती हैं, जिनसे स्पर्म बनते हैं. इन फीमेल्स follicular cells बेटा, cuboidal shape, जिससे अपना ओवा एग बनेगा, फीमेल गैमीट. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म टाइप्स. सो देर आर नॉन सेल्यूलर, लाइक वायरसेस बेटा, काउंट नहीं होते सेल्यूलर में, नॉन लिविंग में काउंट होते हैं. सो वायरसेस, ठीक है. देर आर विरियोइड्स, virions and prions. So what are viruses beta? These are known, they turns into living in the host cell. Viruses beta, so in the environment outside the host cell, the viruses are called virions. तो virions that means बाहर, host के बाहर virions हम बोलेंगे. host के अंदर जब वो living हो जाएगा, that is called virus बेटा. विरियोइड्स and prions क्या होते हैं बेटा? Prions are simple pathogenic proteins होते हैं बेटा. And virioids, these are the simple circular RNA. only RNA होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, डिजीज कोज करेगा, मेनली प्लांट पैथोजन है. कोई प्रोटीन कोट इसके बाहर नहीं होता बेटा, जैसे कैप्सिड प्रोटीन कोट होता है वायरसेस के बाहर. अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफेजेस की, सो बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरिया फेज मतलब खाना, एनगल्फ करना. बैक्टीरिया को खाने वाला जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज इज द वायरस बेटा. इसके बाहर क्या होता है, अपना प्रोटीन कोट होगा, दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सिड प्रोटीन, जिसकी मोनो यूनिट होगी कैप्सोमियर. इसके पास डीएनए होता है खुद का, दैट इज द हेड रीजन बेटा. मिडल पीस, दीज आर द टेल रीजन्स, दैट इज द बैक्टीरियोफेज. सो मिडल पीस, टेल, हेड. नाउ इन सेल्यूलर, so there are prokaryotic organisms, these are called prokaryotes, and eukaryotic organisms. So these are important, you have to learn prokaryotic and eukaryotic. So what are prokaryotic and what are eukaryotic organisms? So remember one thing, pro means primitive, karyotic that comes from a word karyon. Karyon means nucleus. U means advance.
carrion again nucleus. So which has primitive nucleus, which has advanced nucleus. Primitive, that means less developed. So prokaryotic are primitive plus incomplete organisms. Eukaryotic beta, these are advanced plus complete organisms. So they are incomplete. So that means nucleus के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगी, incomplete है, अधूरे हैं. So there is no nuclear membrane. Here is nuclear membrane is present. So there is no membrane around the nucleus बेटा. DNA के बाहर कोई भी membrane नहीं होगी. So that is called nucleoid. What is nucleoid? Nucleus without nuclear membrane. Nucleoid is present but nucleus is absent. Here nucleus is present. So what is nucleus beta? That is the cell. This is the membrane. दिस इज द DNA जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, आगे पढ़ने वाले हैं. सो अगर DNA के बाहर मेम्ब्रेन होगी सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. DNA के बाहर मेम्ब्रेन होगी सो दैट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस. इफ देयर इज नो मेम्ब्रेन आउटसाइड द न्यूक्लियस देन दिस रीजन इज कॉल्ड, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. तो प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. एंड दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर लास्ट NDA एग्जाम, लास्ट ईयर्स NDA एग्जाम, कि न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक cells has what ABCD. So there is a C option, that is nucleoid. Nucleoid present होता है prokaryotic organisms में. Prokaryotic means bacterias. All the bacterias are prokaryotes. Remember this. Next is that is incomplete. So membrane bound cell organelles are absent. Here membrane bound cell organelles are present. Membrane bound मतलब बेटा साइटोप्लाज्म. दिस इज द सेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं ऑर्गेनील्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे बेटा. सो मेम्ब्रेन जिसके बाहर होगी वैसा ऑर्गेनील इसमें एब्सेंट होगा. ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना क्लोरोप्लास्ट इसके पास होगा बेटा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्जी बॉडी, सब एब्सेंट है. हेयर इज प्रेजेंट बेटा बिकॉज दैट इज कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. दूसरी मैं बात करता हूँ राइबोसोम्स की बेटा. तो राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस. राइबोसोम्स जो हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा. सो इधर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे आर मेम्ब्रेनलेस एंड दे आर ऑफ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम. आगे पढ़ेंगे बेटा राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस. So 70S type of ribosomes present in prokaryotic cell. In eukaryotic cell 80S type of ribosomes are present beta. Right? Now the example. Next point is of example. So prokaryotic organisms, all the bacterias. Remember this, all the bacterias are prokaryotes. So cyanobacteria, that is also called blue-green algae. Photosynthetic है बेटा. नेम ने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया बेटा. आफ्टर दैट यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ऑल द बैक्टीरियाज जितना भी आपने पढ़ा, चाहे वो डिजीज कोजिंग है, सभी बैक्टीरियाज किसके अंदर आते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स में. ऑल द बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स. रिमेंबर दिस. यूकैरियोट्स में बेटा ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स लाइक फंगस, जितना भी फंगस है, फंजाई जिसको बोलते हैं. सो ऑल द फंगस, येस्ट, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम सॉरी. पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो ऑल आर यूकैरियोट्स. इवन एल्गा, एल्गा प्लांट्स के अंदर आ गई बेटा. सो दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स में सभी क्या होते हैं बेटा? यूनिसेल्यूलर. राइट. यूकैरियोट्स में दोनों होते हैं. कि एग्जाम्पल अमीबा भी यूकैरियोट है बेटा. पैरामीशियम, यूग्लिना, लेशमेनिया,
तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन कंप्लीट है। तो यूकैरियोट्स में देर आर यूनिसेल्युलर ऑल्सो एंड देर आर मल्टी सेल्युलर ऑल्सो, both are present. And in prokaryotes only unicellular, that is bacterias. So bacterias, all bacterias are prokaryotes, remember this. And rest of the animals, rest of the organisms are in eukaryotes, whether it is plant, animal, fungus, alga, amoeba, paramecium, leishmania, any unicellular organism, that is eukaryote beta. Now the diagram of bacterial cell. So this layer, that is the cell membrane or plasma membrane. Then there is additional layer outside the bacteria, that is called cell wall, made up of peptidoglycan. So that reason here is DNA is present. So reason is nucleoid, that is the circular DNA beta. Now the cell membranes, that is the important thing. Cell membranes infolds to form these structures. These are called mesosomes. So bacterial cells are mesosomes. What are mesosomes? Infoldings of plasma membrane. So what is the function of mesosomes beta? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, प्रोकैरियोट सेल के पास ना माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है, दैट मीन्स रेस्पिरेशन में जो हेल्प करेगा। सो मीजोजोम का काम है रेस्पिरेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर काम है बेटा इसका, हेल्प इन सेल डिवीज़न। अब एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है बेटा, जो आगे पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। प्लांट सेल के पास पोलर कैप्स होती हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल के पास मीजोजोम है, मीजोजोम ही फंक्शंस करेगा बेटा। सो सेम लिक्विड इज द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप। देयर इज वन मोर थिंग बेटा, देयर इज एक्स्ट्रा नॉन क्रोमोसोमल एंड सर्कुलर DNA, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड बेटा? दैट इज नॉन क्रोमोसोमल DNA। एक होता है न्यूक्लियर DNA बेटा, न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं, जो आप ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, जो कंट्रोल करेगा। तो क्रोमोसोमल DNA वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या नॉन क्रोमोसोमल DNA जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जिसका यूज़ करते हैं बेटा एज अ वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर हम यूज़ करते हैं बेटा प्लाज्मिड का। मेनली ई कोलाई से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, इशर्शिया कोलाई। प्लाज्मिड दैट इज़ यूज्ड एज वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। डिज़ायर्ड जीन को होस्ट में डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर्स का। तो प्लाज्मिड इज़ अ वेक्टर बेटा, एंड याद करना है तो देयर इज़ अ प्लाज्मिड PBr322। सो दैट इज़ यूज्ड एज वेक्टर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, extracted from E. coli. E. coli is a bacteria. And there is an additional layer outside the peptidoglycan cell wall, that is called glycocalyx. So that is the glycocalyx beta. So glycocalyx is present in loose sheath beta. If there is loose sheath-like structure, that is called slime layer outside the bacteria, slime layer cell wall के बाहर। एंड अगर ये हार्ड होगा, टफ शीथ-like structure में होगा, so that is called capsule, कि बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल, दैट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स बेटा, ठीक है। इफ दैट इज इन फॉर्म ऑफ टफ शीथ, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। इफ इन लूज शीथ बेटा, लूजली अरेंज्ड, इधर मटेरियल होगा, फ्लूइड होगा अपना, दैट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। And for the locomotion beta, there is large flagella. Flagella help in locomotion beta. There is cilia, paramecium का डायग्राम अगर आपको याद है तो cilia, paramecium के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? cilia प्रेजेंट होते हैं। cilia they are the hair like projections. तो cilia do not helps in locomotion बट फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन बेटा। सीलिया जस्ट मूव करते हैं सराउंडेड फ्लूइड को, खाना वाना खाने में हेल्प करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैप्चरिंग ऑफ फूड में, बट फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन।
movement from one place to another place, that is locomotion. So now next thing beta, we have to study the components of cell. So components of cell, outside there is a membrane, plasma membrane. There is additional layer in plant cell, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल, दैट इज सेल वॉल. एनिमल सेल में एब्सेंट होती है बेटा सेल वॉल. थर्ड न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोलर ऑफ सेल है, डायरेक्टर ऑफ सेल है. देन लिक्विड कंटेंट, दैट इज साइटोप्लाज्म. सो बेटा हेयर आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. एडिशनल लेयर जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, सेल वॉल. In the center, controller of the cell, nucleus. This region that is called cytoplasm. That liquid in the cytoplasm is called cytosol. And the things which float here like mitochondria, if there is a plant cell, then chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosomes. So these are cell organelle. So cell organelle are first endoplasmic reticulum, second one are ribosomes, third is Golgi bodies, Golgi complex, Golgi apparatus और Golgisomes बेटा बहुत सारे नाम हैं. देन माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको बोलते हैं. देन प्लास्टिड 3 टाइप का होता है. देन लाइसोसोम, सुसाइडल बैग जिसको बोलते हैं बेटा. आफ्टर दैट वैक्यूल, देन पेरोक्सीसोम एंड सेंट्रोसोम जिसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है. राइट. सो गोल्जी बॉडीज, प्लांट गोल्जी बॉडीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम and plant lysosome are called spherosomes. Now how many membranes outside the endoplasmic reticulum के बाहर कितनी membrane होंगी बेटा? 1 सिंगल membrane bound. राइबोसोम्स के बाहर कोई भी membrane नहीं होगी, membraneless organelle. Golgi bodies 1 membrane, mitochondria and plastid surrounded by 2 membranes. So double membrane bound cell organelles are, जिनके बाहर 2 membrane होती है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बेटा. एंड दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑल्सो बिकॉज इनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो प्रोटीन्स बना सकते हैं और रेप्लिकेट भी कर सकते हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस. एंड 2 मेम्ब्रेन होती है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. आफ्टर दैट लाइसोसोम, सो देर इज 1 मेम्ब्रेन. वैक्यूल, देर इज 1 मेम्ब्रेन. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वैक्यूल दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट है, याद करना है. Peroxisome, so there is 1 membrane. Centrosome, there is no membrane beta, right? And which is present in the plant cell? Cell wall is present in the plant cells. All the things are present in the plant cells except centrosome beta. Centrosome is present in animal cells only, not in the plant cell beta, right? And animal cells में क्या absent होता है? So in animal cells beta, so there is no plastid, plastid नहीं होगा. And there is no cell wall in the animal cell. And the non-living components of the cell, these are cell wall and vacuole, are the non-living components of the cell. Rest are the living components of the cell.